Okay, welcome back. 23 subsection 2. We had discussed 23 subsection 1, let out house. How to compute the annual value, step 1, 2, 3, gross annual value, net annual value, सब कुछ discussion अपना हो चुका है. Now coming to the self-occupied house. What is self-occupied house? What is self-occupied? Yes. Is it for business? No. Is it for own business? No. Is it for own profession? No. It must be for own residence. So when a house is a self-occupied house, कब house को self-occupied house माना जाएगा? When it is actually occupied for own residence. Own residence. Can you take rent from yourself? No. So for self-occupied house, NAV itself rupees nil. Self-occupied house, net annual value itself rupees nil. NAV हमेशा nil. Okay. Now let us take a situation. First we will discuss in simple terminology. You have a self-occupied house. Assume it is a house. It is self-occupied house. It is in say Ahmedabad. Why Ahmedabad sir? नौकार. ओके अहमदाबाद में खुद की फैमिली के साथ रहते हो. इट्स अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस. इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, नेट एनुअल वैल्यू रुपीज नील. NAV itself rupees nil. Very good. So you stay with your family in Ahmedabad house. Annual value rupees nil. Correct? खुद रहते थे, वैल्यू जीरो हो गई. वेरी गुड. नाउ विल मूव फर्दर. से इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपका ट्रांसफर हो गया फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई. सो आप चले गए मुंबई रहने के लिए. Now the situation is after October, you are there in Mumbai. और अहमदाबाद वाली हाउस जो है उसमें आपकी फैमिली है. कैन वी से अहमदाबाद हाउस इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस? आप खुद नहीं रहते, आपकी फैमिली वहां पे रहती है, आप मुंबई में रहते हो. कैन वी से अहमदाबाद हाउस इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस? ऑफ कोर्स यस, इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, नो प्रॉब्लम. से इन द मंथ ऑफ January, family also got shifted to Mumbai. ध्यान से समझना. अभी जनवरी में क्या किया आपने? आपकी फैमिली को भी मुंबई बुला लिया. नाउ द सिचुएशन इज, आप आपकी फैमिली के साथ मुंबई रहते हो और अहमदाबाद वाला हाउस जो है, दिस अहमदाबाद हाउस खाली पड़ा है. क्या बोलेंगे? नो, वैकेंट नहीं बोलेंगे. जो दिमाग में आया उसको दिमाग में ही रखो, उसको इंप्लीमेंटेशन में लेके मत आना. वैकेंसी वर्ड इज ओनली फॉर लेट आउट हाउस. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस अगर खाली पड़ा है तो उसको बोलेंगे नॉट ऑक्यूपाइड. Understand the difference? If it was a let out house और खाली पड़ा है, it is vacant. If it was a self occupied house और खाली पड़ा है, it is not occupied. अच्छा, not occupied क्यों? Why it is not occupied? Reason? Because your business or profession or employment at some other place, that is in our case Mumbai. क्योंकि आपका बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट मुंबई में है, अहमदाबाद वाला हाउस आपका खाली पड़ा है. कैन वी से इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड? सर सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल सकते हैं क्या उसको? सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब तो ओन रेसिडेंस होता है. इसमें तो घर खाली पड़ा है जनवरी से, तो क्या उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, बोल सकते हैं. सो व्हाट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस? सेल्फ ऑक्यूपाइड डज नॉट मीन कि आप वहां पे रहते ही हो तो ही सेल्फ ऑक्यूपाइड. देयर आर टू क्लॉजेस, क्लॉज ए, क्लॉज बी.
23 subsection 2 self-occupied house, two different clauses are applicable. Clause A क्या बोलता है? It is actually occupied for own residence. Clause B क्या बोलता है? Can not actually occupied due to the reason of the fact that your business or profession or employment is carried on at any other place. In both this situation, house is considered to be self-occupied house and its net annual value will be rupees nil. So what is self-occupied house? Either it is used for own residence or could not be occupied due to the employment at the other place. Employment may be employment, business, profession, कुछ भी हो सकता है. Correct? So now let us go to the legal language. Wordings के ऊपर जाते हैं. नौकार स्पाइरल एज यूजुअल ओपन करो. 23 सबसेक्शन 1 तक का डिस्कशन हो चुका है. 23 सबसेक्शन 2 पे आ जाओ. कल जहां पे अटके थे वहीं से आगे बढ़ रहे. हाथ में पेंसिल रखना. इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन करते जाना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करते जाएंगे. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. सो 23 सबसेक्शन 2 पे आ जाओ. 23 subsection 2 says that property consists of a house or part of the house, या तो पूरा घर या तो एक आध रूम, is in occupation of the owner for his own residence. Own residence. और फर्स्ट केस क्या है जो हमने अहमदाबाद हाउस डिस्कस किया? आप खुद रहते हो फैमिली के साथ, सेल्फ ऑक्यूपाइड. और कैन नॉट एक्चुअली बी ऑक्यूपाइड, कैन नॉट ऑक्यूपाइड बाय द ओनर बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट ओइंग टू हिज एम्प्लॉयमेंट, owing to his employment, business or profession carried on at any other place, he has to reside at the other place. And he has to reside at the other place in a building. This not belonging to him is cancelled. इतना पोर्शन आपको आपकी स्पाइरल से कैंसिल करना है. क्यों कैंसिल करना है? वी विल डिस्कस लेटर ऑन. इतना पोर्शन कैंसिल करना है. क्यों कैंसिल करना है? वी विल डिस्कस. जानबूझ के इसमें रखा है, समझने के लिए रखा है. अभी उसको इतना पोर्शन को कैंसिल करो. वी विल डिस्कस व्हाई वी हैव कैंसिल दिस. ओके. He has to reside at a other place in a building. The annual value of such house or part of the house shall be taken to be nil. Annual value nil. Okay. So important words. Self-occupied house, either own residence or could not be occupied due to employment or business or profession at a other place. In both the cases, annual value of the property will be rupees nil. Correct? So in short, इतना अंडरलाइन करने के बाद लिखना क्या है? सिर्फ इतना ही. For self-occupied house, net annual value will be rupees nil and no deduction. No deduction of municipal or local taxes paid by owner. म्यूनिसिपल लोकल टैक्सेस जो ओनर ने पे किया है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. कल हमने म्यूनिसिपल टैक्स डिस्कस किया था. डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस ओनली फ्रॉम लेट आउट हाउस. अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो नेट एनुअल वैल्यू इटसेल्फ रुपीज निल. अगर नेट एनुअल वैल्यू ही जीरो है तो उसमें म्यूनिसिपल टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं हो सकता है. सो for self-occupied house, NAV rupees nil, no deduction for any municipal taxes or local taxes paid by owner. Municipal local taxes में क्या हो सकता है? Maybe water tax, sewerage tax or any other taxes levied by the municipal authority or local authority. Fine. So जितना black font में उतना लिखो जल्दी से. Only one line, fast. 23 subsection 2. Something which is in blue, it is already there with you. ओके. खास करके नो डिडक्शन अंडरलाइन करके रखना उसको भी. नो डिडक्शन फॉर म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर.
राइट, चलो. So 23 subsection 2 self occupied house NAV rupees nil, net annual value rupees nil. अब इसी एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं. ओके, वही एग्जाम्पल वापस लेते हैं, फिर से याद करवा देता हूँ वो एग्जाम्पल. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इन अहमदाबाद in the month of January, shifted to मुंबई. आप शिफ्ट हुए थे अक्टूबर में, फैमिली जनवरी में शिफ्ट हो गई थी मुंबई में. मुंबई में आप कोई भी एक बिल्डिंग में रहते हो और ये अहमदाबाद वाला हाउस जो है वो आपका खाली पड़ा है. बीइंग अ रेशनल पर्सन, हाउस कभी खाली रखेंगे नहीं. मुंबई में अपना जॉब वगैरह सब सेट है, तो अहमदाबाद वाले हाउस का क्या करेंगे? जला देंगे सर, फिर इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम देगी. ऐसा नहीं होता है भाई. इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, प्राइम लोकेशन पे, जलाना है? नो. क्या करेंगे? बेच देंगे? नो. इन्वेस्टमेंट है, क्या करना है? ऑब्वियसली एज ए रेशनल पर्सन आपने सोचा इसको भाड़े पे दे देते. लेट अस लेट आउट दिस हाउस. आपने क्या किया? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को लेट आउट कर दिया. कब लेट आउट किया? से इन द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि जनवरी में तो फैमिली शिफ्ट हुई थी. गेट के बाहर ही टेनेंट तो खड़ा नहीं होगा, टाइम तो लगेगा ढूंढने में. सो फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, 1 मार्च से आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को लेट आउट कर दिया. ओके, नाउ वंस द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज लेट आउट, कैन वी से इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड? क्या उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल सकते हैं? डेफिनेटली नो. So it is a let out house. If it is a let out house, how to calculate the income? अगर let out house होगा तो annual value कैसे calculate करेंगे? Annual value to be calculated as per 23 subsection 1. 23 subsection 1 क्या डिस्कस किया था? 23 subsection 1 step 1, step 2, step 3. Step 1 municipal valuation or fair rent higher. Step 2 compare with standard rent whichever is lower. Step 3, compare with actual rent whichever is higher. That higher amount was GAV minus municipal tax paid by owner NAV. Correct? So calculation will be as per 23 subsection 1. Now the most crucial part is there. थोड़ा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आएगा. आराम से सुनना, समझना, ध्यान रखना. जरूरत पड़े तो हमने 23 सबसेक्शन 1 के अंदर क्लॉज ए में जितना अंडरलाइन किया था उसको भी देख लेना एक बार. फिर से बोलता हूं, फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, इन आवर एग्जाम्पल फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, this property self occupied house is actually let out, and if it is let out, computation to be done as per 23 subsection 1. 23 subsection 1 talks about reasonable expected rent. Reasonable expected rent to be compared with actual rent and whichever is higher to be considered. हाजमुला लेके बैठना, डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है. कब आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया? मार्च. कितने मंथ का रेंट मिलेगा फॉर दिस ईयर? ओनली मार्च. फिर जो ईयर खत्म हो जाएगा अपना, प्रीवियस ईयर इज ओवर. मार्च 1 महीने का रेंट मिला है. माय स्टेप 3 क्या था? इट सेज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और actual rent whichever is higher. Reasonable expected rent or actual rent whichever is higher. आराम से सुनना. हाँ, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट में प्रोविजन क्या था? ईयर टू ईयर, दैट मीन्स एनुअल, दैट मीन्स पूरे साल का. एक्चुअल रेंट मतलब रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, वो 1 महीने का ही होता है. क्यों? क्योंकि हमने मार्च में लेट आउट किया है. कुछ समझ में आ रहा है? RER इज ऑलवेज फॉर अ ईयर, पूरे साल का वैल्यू. एक्चुअल रेंट फॉर 1 मंथ इन दिस केस,
whichever is higher will be taxable. Reasonable expected rent or actual rent, whichever is higher is taxable. RER is always annual. Compare with actual rent, whichever is higher taxable. In this case, एक महीने का रेंट मिलेगा, पूरे साल की इनकम का टैक्स भरना पड़ेगा. नोशनल इनकम इज टैक्सेबल. ओह, क्या खतरनाक प्रोविजन है. बट हियर assessee must be owner of the property. So I am giving you a golden sentence. एकदम परफेक्टली दिमाग में सेट करके इतना a golden sentence for you. If you are the owner, RER is always annual. If you are the owner, RER is always annual. So once a self-occupied house actually let out, पूरे साल का reasonable expected rent, compare with actual rent for let out period, whichever is higher will be taxable. एक महीने का भाड़ा मिलेगा, पूरे साल की इनकम का टैक्स भरना पड़ेगा. नोशनल इनकम इज टैक्सेबल. बोलो करना है ऐसा? नो सर, कैंसिल. लेट आउट नहीं करना है. लेट मी कैंसिल ऑल्सो. नॉट टू लेट आउट. नॉट टू लेट आउट. नहीं, लेट आउट नहीं चाहिए. नो लेट आउट, नो कैलकुलेशन, नो 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 नो. खाली रहने देते. खाली होगा तो नॉट ऑक्यूपाइड. नॉट ऑक्यूपाइड मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड. एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड देन सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो NAV रुपीज नील. घर खाली पड़ा है. फिर वो एक सीरियल वाले आए आपके पास, टेलीविजन सीरियल वाले. आपकी प्रॉपर्टी देख के खुश हो गए. बोले आपका ये जो प्रॉपर्टी है, अच्छा किसी की याद आ गई. ओके, आपका ये जो प्रॉपर्टी है इसमें कुछ तो है, पता करो. ये प्रॉपर्टी में कुछ खास है. क्या खास है? इसका लोकेशन. वेरी नाइसली लोकेटेड प्रॉपर्टी, वेरी नाइस प्रॉपर्टी इज देयर. आपके पास आए, बोले वी वांट दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग फॉर वन ऑफ द एपिसोड ऑफ आवर सीरियल. कैन यू प्लीज गिव अस फॉर से 7 days? वी विल यूज द प्रॉपर्टी फॉर 7 days. विल शूट वन ऑफ द एपिसोड और उसके बदले में आपको हम 1 लाख रुपया देंगे. वी विल गिव यू 1 लाख रुपीज जस्ट फॉर द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर a specific 7 days period. We don't want on rent. हमें रेंट पे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, हमें सिर्फ इसको यूज करना है. ओके फाइन, यू कैन यूज द प्रॉपर्टी सर. सो आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को क्या किया? यूज करने के लिए दे दिया. किसको यूज करने के लिए दे दिया? वो एपिसोड वाले को, सीरियल वाले को यूज करने के लिए दे दिया. कितने दिन के लिए? सिर्फ 7 दिन के लिए. बदले में 1 लाख रुपया मिल गया. यू आर हैप्पी, बट I'll make you unhappy. क्यों? Because if you have not let out the property, but if you derive any other benefit from the property, इसमें से दूसरा कोई बेनिफिट आपने अर्न किया है या कमाया है या तो कुछ रिसीव किया है, then again the house is not self-occupied. Again the annual value will be taxable as per 23 subsection 1. In that case क्या होगा? इस केस में क्या होगा? जो बेनिफिट कमाया है, RER रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का होगा. एक्चुअल रेंट वो सीरियल वाले के पास से मिला हुआ 1 लाख होगा. Whichever is higher, whatever higher is, it will be taxable. Correct? So now I will take you to 23 subsection 3. Subsection 2 में हमने क्या देखा? प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड. कौन कौन सी सिचुएशन में सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी? नंबर 1, it is actually used for own residence. Number 2, cannot occupy due to employment at the other place. Okay.
कब सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानी जाएगी? नंबर 1, if self-occupied house is actually let out. Number 2, any other benefit is derived from the property. Fine. So दो सिचुएशन जिसमें हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दो सिचुएशन जिसमें हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं माना जाएगा. करेक्ट? सो विल गो टू 23 सबसेक्शन 3. House not self occupied. When 23 subsection 3 says that provision of subsection 2 shall not apply. Provision of subsection 2, subsection 2 बोलता था self occupied house, वो provision apply नहीं होगा, मतलब कि self occupied नहीं माना जाएगा. कब? See, wordings are fantastic. The house or part of the house is actually let during whole or any part of the previous year. मतलब कि या तो पूरा घर, या तो कोई एक रूम, या तो पूरे साल, या तो एक आध दिन के लिए भी लेट आउट कर दिया हो. इफ हाउस और पार्ट ऑफ द हाउस लेट आउट फॉर होल और पार्ट ऑफ द ईयर, इन दैट केस इट इज नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड. एंड क्लॉज बी सेज एनी अदर बेनिफिट देयर फ्रॉम डिराइव बाय द ओनर. उसमें से दूसरा कोई बेनिफिट डिराइव किया हो, जो एग्जाम्पल हमने वो सीरियल वाला लिया वो. So in short, if self-occupied house is actually let out or any other benefit is derived by the owner, then such self-occupied house is not considered as self-occupied. Hence, its annual value will be taxable. So annual value, how to calculate annual value in case of let out house as per 23 subsection 1. Correct? So in black font, whatever is there, you are supposed to write and underline the important words. House or part of the house, let, whole or part of the previous year. Any other benefit derived. Not self-occupied. Fine. नाइंसाफी नहीं है भैया. आपके दिमाग में जो भी सवाल आता है उसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है. टू रिड्यूस द टैक्स इवेजन एंड ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोविजंस आर देयर. नोशनल इनकम इज टैक्सेबल. हमने टॉपिक की शुरुआत ही उससे की थी. पूरे टॉपिक में दिमाग में रखना है नोशनल इनकम वाला कंसेप्ट. इनकम अर्न ना किया हो तो भी टैक्स भरना पड़ेगा. रईस इंसान हो, इनकम इनइक्वालिटी भी तो कम करनी है. इतने सारे हाउस है, टैक्स तो भरो. राइट डाउन फास्ट. Ready? Fine. Discussion 23 subsection 1 let out, 2 self-occupied, 3 not self-occupied. Now I'll take you to the next provision. Very interesting provision. 23 subsection 4 के ऊपर जाते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आराम से सुनना. It's a fun, you know. 23 subsection 4 we are talking about. बहुत ही संभाल के ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. रेडी? बात करते हैं आप जैसे रईस इंसान की. यू आर द ओनर ऑफ सो मेनी प्रॉपर्टीज. बहुत सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो. कैसे? नौकर से सीए कर लिया. यू आर अ स्मार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, गॉट अ वेरी गुड जॉब
and now you are the owner of multiple so many properties. Enjoy. Let us take a simple example. Say you are owner of 4 properties. 4 प्रॉपर्टी के ओनर हो. चारों प्रॉपर्टी, all 4 properties are सेल्फ ऑक्यूपाइड. ये चारों प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है. सर चारों सेल्फ ऑक्यूपाइड कैसे? बताता हूं. फर्स्ट वन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसमें आप खुद रहते हो. फैमिली के साथ. फैमिली मीन्स न्यूक्लियर फैमिली आई एम टॉकिंग अबाउट. खुद रहते हो फैमिली के साथ. सेकेंड प्रॉपर्टी न्यूक्लियर समझ में नहीं आता है. स्पाउस एंड चिल्ड्रन, राइट. सेकेंड प्रॉपर्टी इट इज ऑल्सो सेल्फ ऑक्यूपाइड. इसमें पेरेंट्स रहते हैं. अब समझ में आ गया ना न्यूक्लियर क्यों अलग किया. हाँ. फर्स्ट प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, खुद रहते हो फैमिली के साथ. सेकेंड प्रॉपर्टी पेरेंट्स रहते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी अगेन सेल्फ ऑक्यूपाइड. इसमें कौन रहता है? एक जमाई राज को दिया है, ब्रदर इन लॉ, उसको रहने के लिए दिया है. ओके. फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेल्फ ऑक्यूपाइड. एक्चुअली इट इज नॉट ऑक्यूपाइड. इट इज ओनली परचेस फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट. फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज परचेस. जैसे ही प्राइस बढ़ेगा मार्केट में बेच देंगे. फाइन. सो यू आर ओनर ऑफ 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस. 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के ओनर हो. आप तो बोले हो, गवर्नमेंट को जाके बता दिया, आई एम द ओनर ऑफ 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एंड इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नेट एनुअल वैल्यू विल बी रुपीज नील. वेरी गुड. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होगा तो एनएवी रुपीज नील हो जाएगा. ओके. नाउ व्हाट गवर्नमेंट सेज कि भैया आप कोई कृष्ण कन्हैया हो क्या? एक साथ 4 घर में कैसे रहते हो? नॉट पॉसिबल सर. यू सिलेक्ट एनी वन हाउस एज सेल्फ ऑक्यूपाइड. कोई भी एक सिलेक्ट करो. क्यों कोई भी एक सिलेक्ट करो? गवर्नमेंट ने बोला करो, आपको बोला है तो करो. गवर्नमेंट माई बाप है, जो बोले वो करना पड़ेगा. सिलेक्ट करो. अच्छा, गवर्नमेंट ने अपने को ऑप्शन दिया, हमें ऑप्शन दिया है सिलेक्ट करने का, बेस्ट है. सिलेक्ट किया, ये बड़ा वाला मेरा किया. क्या सिलेक्ट किया? यू सिलेक्टेड व्हाट? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस. यू सिलेक्टेड व्हाट? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस. एंड इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एनएवी ऑफ दिस हाउस विल बी रुपीज नील. करेक्ट. सो गवर्नमेंट बोलती है मान लिया कि आपका ये जो हाउस है दिस वन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, एनएवी रुपीज नील. साथ में ये भी मान लिया कि बाकी के 3 जो है वो अपने भाड़े पे दिए हैं, उसको बोलेंगे डिम लेट आउट. स्ट्रेंज प्रोविजन. व्हाट इज सो स्ट्रेंज अबाउट इट? स्ट्रेंज थिंग इज if you are owner of more than one self-occupied house, only one house can be considered as self-occupied. All other assumed to be let out. And if it is assumed to be let out, calculation will be as per 23 subsection 1. और अगर 23 subsection 1 पे जाओगे तो वापस आ जाएगा स्टेप नंबर 1, 2 and 3. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 2 से मिल गया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. स्टेप 3 पॉसिबल ही नहीं है, एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं. सो स्टेप 2 रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इटसेल्फ विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल. क्या प्रोविजन बनाया है. इफ यू आर ओनर, खास ध्यान में पकड़ के रखना वर्ड ओनर. इफ यू आर ओनर ऑफ more than one self-occupied house. दिमाग में बुरे बुरे ख्याल कि सर ऐसा करे तो
एक प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे कर दे, गलती से सोचना भी मत, डीम्ड ओनर। डोंट थिंक टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ स्पाउस, यू आर अज्यूम टू बी द ओनर, अगेन यू आर ओनर। सर पेरेंट्स के नाम पे कर दे तो डीम्ड ओनर का कंसेप्ट नहीं था। हाँ नहीं था, बट सवाल ऐसा है कि कितने साल तक टैक्स से बचेंगे भाई, और फिर उसमें इधर से उधर उधर से इधर करने में ट्रांसफर फीस एंड स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह ये सब कौन भरे? नॉट अ गुड चॉइस। सर कोई और टैक्स इवेजन का प्लानिंग, इवेजन का कभी प्लानिंग नहीं होता बे, इवेजन होता है। टैक्स प्लानिंग हो सकता है, टैक्स प्लानिंग बाद में सोचेंगे। सर इसमें एक ऐसा करे तो कि एक प्रॉपर्टी ब्रदर इन लॉ के नाम पे कर दे तो वापस नहीं आएगी प्रॉपर्टी, सोचना भी मत। Let it be as it is. If you are owner of more than one self-occupied house, only one can be considered as self-occupied. But सर ये तो बहुत नाइंसाफी है। और ऐसे ऐसे प्रोविजंस की वजह से क्या होता है, तो अपना रियल एस्टेट सेक्टर हार्श हिट, यू नो। और ऐसा भी हो सकता है ना सर कि बाप दादा के जमाने से हमें इनहेरिटेंस में एक हाउस मिला हो, हमने दूसरा भी खरीदा हो, सो मेनी थिंग्स कैन बी देयर। ये ठीक नहीं है सर। इनकम ही नहीं अर्न किया फिर भी टैक्स भरने का, डिम लेट आउट वाला, नॉट फेयर सर। So many representations have been done, and in the last budget, our Honorable Finance Minister श्रीमती जी, उन्होंने एक चेंज दिया, अमेंडमेंट। खास ध्यान में रखना, इट इज एन अमेंडमेंट नाउ। क्या किया, एक का दो कर दिया। स्कीम चल रहा था एक का दो, एक का दो, एक का दो, इसमें भी हो गया एक का दो। क्या एक का दो, एक का दो क्या हो गया? इफ यू आर ओनर ऑफ मोर देन वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, इंस्टेड ऑफ वन, एनी टू हाउस कैन बी कंसिडर्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। टू हाउसेस कैन बी कंसिडर्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड रादर। मतलब कि अगर आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी के ओनर हो और सारी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट कर सकते हो जिसका एनएवी रुपीज नील हो जाएगा, मतलब कि टैक्सेबल इनकम जीरो हो जाएगा, एंड अदर हाउस और हाउसेस विल बी अज्यूम टू बी लेट आउट। थैंक गॉड एट द ऑप्शन ऑफ असेसी हमें सिलेक्ट करना है विच हाउस टू बी कंसिडर्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसीलिए हमने सिलेक्ट किया वो बड़ा वाला। क्यों सिलेक्ट किया था बड़ा वाला? तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, वैल्यू ज्यादा होगी तो उसको एनएवी रुपीज नील कर देंगे, उसको टैक्सेबल नहीं बनाएंगे। सो अब हो गया एक का दो। सो इंस्टेड ऑफ वन, कौन सा दूसरा बड़ा वाला दिख रहा है? ये वाला। टू विल बी कंसिडर्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड रिमेनिंग टू हाउस विल बी अज्यूम टू बी लेट आउट, और ये बाकी के दो हाउस का एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगा। करेक्ट? So very interesting provision. If you are owner of, पकड़ के रखना वर्ड owner. If you are owner of more than one self-occupied house, any two houses to be considered as self-occupied, NAV rupees nil. All other house or houses other than the option for which you already selected, बाकी सारे हाउस एनएवी टू बी कंप्यूटेड एज पर 23 सबसेक्शन 1 एज इफ इट इज अ लेट आउट हाउस। एज इफ लेट आउट हाउस का मतलब होता है डिम लेट आउट हाउस। करेक्ट? नाउ लेट अस गो टू द प्रोविजन एक्चुअल वर्डिंग्स। 23 सबसेक्शन 4 डिम लेट आउट प्रॉपर्टी। सबसेक्शन 4 says that where the property referred to in subsection 2 consist of more than two houses, क्योंकि दो का तो ऑप्शन आपके पास अब आ गया है। 23 सबसेक्शन 2 का मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड, दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड। अभी हमने एग्जांपल लिया था 4 का। दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो तो व्हाट क्लॉज ए सेज,
द प्रोविजन ऑफ दैट सबसेक्शन, दैट सबसेक्शन मतलब 23 सबसेक्शन 2 जिसमें लिखा था NAV रुपीज निल, प्रोविजन ऑफ दैट सबसेक्शन shall apply only in respect of two of such houses, two of such houses मतलब कि दो हाउस का NAV रुपीज निल, which the assessee may at his option specify. हाँ, thank God, at his option specify, हमें स्पेसिफाई करना है, इनकम टैक्स ऑफिसर डिसाइड नहीं करेगा, अगर उसको डिसाइड करने बोल दिया तो वो सब छोटे छोटे डिसाइड करेगा, हम सब बड़े बड़े डिसाइड करेंगे. करेक्ट. सो एट द ऑप्शन ऑफ assessee we have to select any two houses self occupied. B, annual value of house or houses other than the houses in respect of which option exercise in clause A, मतलब कि क्लॉज ए के अंदर हमने जो दो हाउस को सिलेक्ट कर लिया एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड उसको छोड़ के, shall be determined under subsection 1. subsection 1 मतलब कि let out, as if these house or houses are let out house. Correct. Oh, very good, very fine, interesting, very interesting. Provision is absolutely fine. बेस्ट प्रोविजन, सबसे फेवरेट प्रोविजन है अपना. इफ यू आर ओनर ऑफ मोर देन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ओनली टू कैन बी कंसिडर्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, NAV nil, ऑल अदर हाउस assumed to be let out, और assumed to be let out मतलब 23 subsection 1 step 2 RER will be taxable as a notional income. So if assessee is the owner of more than two self-occupied house, only two houses at the option of assessee can be considered as self-occupied with NAV rupees nil, while other house or houses will be assumed to be let out and its annual value will be taxable as per 23 subsection 1. Correct. Now something which is in black you are supposed to write, और साथ में underline करते जाएंगे important words. Important words are subsection 2, two houses, only in respect of two, assessee, his option, specify, annual value other than the house, determine, as if let out. As if let out का मतलब dim let out. So it is a dim let out property. Write down fast. प्लानिंग अभी पूछो मत, प्लानिंग बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हाउस के ऊपर कंसंट्रेट करो. मेक इट फास्ट. छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, कितना टाइम है? ओके. 23 subsection 4 absolutely clear. More than two self-occupied, only two self-occupied, NAV nil, all other property assumed to be let out, taxable. Fine. Now, on the basis of this very, very important provision, I am taking you to a crucial provision. बहुत ही आराम से सोच समझ के बताना. We'll take the example first. 23 subsection 4 ऐसा बोलता है, only two house can be considered as self-occupied. Self-occupied का मतलब क्या होता है? It is either not occupied or it is used for self-residence.
not occupied due to business, profession, employment at the other place. Now think of a builder, contractor, dealer who held the property as a stock in trade. स्टॉक इन ट्रेड की प्रॉपर्टी है. स्टॉक इन ट्रेड प्रॉपर्टी मतलब you have constructed the building. Let us say, take a simple example of builder only. You have constructed the building having say 10 apartments. एक बिल्डिंग के अंदर 10 अपार्टमेंट है. आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया है और उसको फिर फ्यूचर में बेचेंगे. तो उसके केस में क्या होगा? अरे यार वेट, सीधा बिजनेस 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 चिल्लाओ मत. सर वो तो बिजनेस हो गया, ऐसा नहीं. आराम से समझो, बहुत ही आराम से समझो. यू आर द बिल्डर. आपने 10 अपार्टमेंट्स बिल्ड किए हैं. 10 अलग अलग अपार्टमेंट है. सपोज सब मिला के योर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इससे 10 करोड़. 10 करोड़ में ये 10 अपार्टमेंट बना दिए. इन फ्यूचर यू विल सेल दी अपार्टमेंट, 1 बाय 1 करके सेल करेंगे और सेल प्रोसीड्स, रिसिप्ट्स, सेलिंग रिसिप्ट्स कम्स टू 12 करोड़ फॉर एग्जाम्पल. 10 करोड़ कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट हुआ था सब मिला के. 12 करोड़ में 10 अपार्टमेंट बेचे हैं आपने. सो 2 करोड़ इज योर बिजनेस इनकम. एब्सोल्युटली क्लियर, इट इज बिजनेस इनकम. नो प्रॉब्लम विद दैट सर. इट इज अ बिजनेस इनकम, नो प्रॉब्लम. बट द क्वेश्चन इज 10 अपार्टमेंट तो बना दिए, क्या खरीदार लाइन लगा के खड़े हैं बाहर खरीदने के लिए? नहीं. नाउ सिचुएशन इज कि आप 4 अपार्टमेंट बेच पाते हो. यू सोल्ड 4 अपार्टमेंट्स, 6 आर स्टिल देयर. 6 अपार्टमेंट अभी भी सेल होना बाकी है. माइंड वेल. हाइपोथेटिकल एग्जांपल ये अपना बिल्डर का खुद का एक घर है जिसमें वो रहता है. उसके अलावा ये 6 अपार्टमेंट जो है जो अभी तक सेल नहीं हुआ है, उसका ओनर कौन सा है? हु इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी? बिल्डर हिमसेल्फ. मतलब के बिल्डर इज द ओनर ऑफ 7 हाउस प्रॉपर्टी. एक जो खुद रहता है, 6 जो उसके अपार्टमेंट्स रेडी है, सेल नहीं हो पाया. फ्यूचर में सेल होगा कभी भी, और फ्यूचर में जब भी सेल होगा बिजनेस इनकम में चला जाएगा, नो प्रॉब्लम. बट जब तक सेल नहीं हुआ है तब तक के लिए तो वो ओनर है. एंड वंस यू आर ओनर ऑफ मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड. क्यों सेल्फ ऑक्यूपाइड? क्योंकि ये लेट आउट तो है नहीं, ये किसी को भाड़े पे दिया नहीं है. ये प्रॉपर्टी ओन बिजनेस के लिए यूज में भी नहीं है. स्टॉक इन ट्रेड की प्रॉपर्टी है, स्टॉक में रखा है. इस प्रॉपर्टी को बिजनेस के यूज में नहीं लिया. करेक्ट. तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? 7 के ओनर हो, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते, बाकी के 5 का क्या? तो उसका नोशनल इनकम विल बी टैक्सेबल. कब तक? जब तक वो अपार्टमेंट बेच नहीं पाते. सर ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है. दिस इज समथिंग विच इज नॉट डाइजेस्टेबल सर. इट इज वेरी डिफिकल्ट. हाउ अ बिल्डर विल सर्वाइव इन दैट केस? कितने सालों तक बेचारा बेच नहीं पाएगा, क्या करेगा? हालत खराब. ना कोई इनकम आएगी, फिर भी टैक्स भरना पड़ेगा. नोशनल इनकम इज टैक्सेबल. तो यहां पे पिक्चर में आएगा 23 सबसेक्शन 5. 23 सबसेक्शन 4 को दिमाग में रखे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. 23 सबसेक्शन 5, स्टॉक इन ट्रेड प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. ओके. स्टॉक इन ट्रेड प्रॉपर्टी मतलब दैट अनसोल्ड अपार्टमेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट. अनसोल्ड अपार्टमेंट्स जितने भी उसके बाकी रह गए थे उसकी बात कर रहे हैं हम लोग.
बिल्डर की बात कर रहे हैं, दिमाग में बिल्डर रखना, वो 6-7 अपार्टमेंट जो अपने बेच नहीं पाए हैं उसी को दिमाग में रखना, तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन समझना इजी हो जाएगा। ओके, स्टॉक इन ट्रेड प्रॉपर्टी 23 सबसेक्शन 5 सेज दैट प्रॉपर्टी इफ इट इज हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, अगर स्टॉक इन ट्रेड का प्रॉपर्टी होगा तो नोशनल इनकम टैक्सेबल हो सकती है, लेकिन रिलैक्सेशन दिया है। क्या रिलैक्सेशन दिया है कि इस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू टैक्सेबल नहीं होगा। कब तक? कब तक एनुअल वैल्यू टैक्सेबल नहीं होगा? जिंदगी भर तक? ऐसा नहीं, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम end of previous year in which completion certificate received from the appropriate authority। गजब इंग्लिश बोला सर, क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। फिर से, we are talking about those unsold apartments, जो अपार्टमेंट सेल नहीं हुए उसकी बात कर रहे हैं। उसकी नोशनल इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। कब तक? 2 साल तक। 2 साल कब से? एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर खत्म हो। कौन सा प्रीवियस ईयर? इन विच कंप्लीजन सर्टिफिकेट रिसीव्ड। कंप्लीजन सर्टिफिकेट मतलब बिल्डिंग यूटिलिटी परमिशन मिला हो, बिल्डिंग यूटिलाइज करने का परमिशन मिला हो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के पास से। जिस ईयर में वो परमिशन मिला है वो ईयर खत्म हो, वहां से 2 साल तक कोई भी नोशनल इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। इन शॉर्ट, 2 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी बेच दो या तो भाड़े पे दे दो तो आपका छुटकारा हो गया। अदरवाइज नोशनल इनकम विल बी टैक्सेबल। 2 साल कब से गिनने? माइंड वेल, फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ कंप्लीशन, एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, BU परमिशन रिसीव्ड, बिल्डिंग यूटिलिटी यूटिलाइज करने का परमिशन, से फॉर एग्जाम्पल रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 19 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर 1920। प्रीवियस ईयर 1920 मतलब एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी 31 मार्च 20, एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच BU परमिशन रिसीव्ड। यहां से 2 years, that is up to 31st March 22. For this period, taxability will be rupees nil, annual value taxable नहीं होगा। After this period, that is from 1/4/2022 onwards, notional income will be taxable। क्लियर है? BU परमिशन, वेरी क्रूशियल प्रोविजन। BU परमिशन जिस ईयर में मिला है वो ईयर खत्म हो, एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, वहां से 2 साल तक टैक्सेबिलिटी नील। उसके बाद एनुअल वैल्यू दैट इज नोशनल इनकम विल बी टैक्सेबल। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज ऑल्सो एन अमेंडमेंट। जैसे मैंने बताया ना, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, इसमें भी हो गया 1 का 2। Previously the provision of only 1 year, now it is extended to 2 years. Correct? Now let us go to the legal language. In some cases where whole or part of the property may not be let out during the previous year or any part of the previous year. In such cases, annual value of this property shall be taken to be nil. Annual value nil, or you can say not taxable. Fine. This benefit would be available for a period up to 2 years from end of previous year in which certificate of completion of construction is obtained from the competent authority। appropriate authority के पास से सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिले
वो जिस ईयर में मिले वो ईयर खत्म हो, उसके बाद 2 साल तक नोशनल इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, उसके बाद इट विल बी टैक्सेबल. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years from the end of previous year of BU permission, still if the property is unsold or not let out, its notional income will be taxable. So for a period of 2 years relaxation, उसके बाद notional income taxable होगी. Stock in trade property, important words को underline करके last paragraph जल्दी से लिख लो, make it fast. Chalo, ready? Fine, that is all about 23 subsection 1, 2, 3, 4, 5. Okay, जल्दी से याद कर लेते कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था. 23 subsection 1 was for let out house, step 1, 2, 3 से calculation. 23 subsection 2 was for self occupied house, NAV rupees nil. 23 subsection 3, house is not self-occupied when it is actually let out or any other benefit is derived. 23 subsection 4 talks about deemed let out house. Only 2 house can be considered as self-occupied, all other house assumed to be let out. 23 subsection 5 we have talked about stock in trade property. 2 साल तक का benefit, after 2 years it will be taxable. Correct. अब आगे बढ़ते हैं. 23 सबसेक्शन 1 कैलकुलेशन के अंदर, मतलब कि लेट आउट हाउस कैलकुलेशन के अंदर 3 पॉइंट देखे थे हमने. इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स वर देयर. नंबर 1 वाज वैकेंसी, जिसका ट्रीटमेंट क्लॉज सी के हिसाब से करते थे. नंबर 2 वाज म्युनिसिपल टैक्स, जिसका डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे होगा ओनली इफ ओनर हैज पेड द म्युनिसिपल टैक्स. मतलब कि टेनेंट ने पे किया या आउटस्टैंडिंग है तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं होगा. एंड ऑब्वियसली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस म्युनिसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड बिकॉज एनएवी इटसेल्फ रुपीज निल. थर्ड पॉइंट वाज अनरियलाइज्ड रेंट. अनरियलाइज्ड रेंट के अंदर वी हैड डिस्कस समथिंग लाइक अनरियलाइज्ड रेंट को क्या करना है. तो एक्चुअल रेंट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली आफ्टर डिडक्शन द पोर्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, ओनली आफ्टर डिडक्टिंग द अनरियलाइज्ड रेंट. अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस तो करना है बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. और वो जब डिस्कस किया था पॉइंट हमने अनरियलाइज्ड रेंट को एक्चुअल रेंट से माइनस करना, तब एक अच्छी सेंटेंस देखे थे, एक अच्छा सा. क्या सेंटेंस देखा था हमने? सब्जेक्ट टू सच रूल्स, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और डिफाइंड. सब्जेक्ट टू सच रूल्स, दैट इज रूल नंबर 4. मतलब कि अनरियलाइज रेंट हुआ, पहले तो याद करते व्हाट वाज अनरियलाइज रेंट. टेनेंट रहता था लेकिन उसने भाड़ा नहीं दिया, भाड़ा दिए बगैर भाग गया. सो अनरियलाइज रेंट हुआ. इफ एट ऑल अनरियलाइज रेंट इज देयर तो क्या करेंगे? सीधा एक्चुअल रेंट से माइनस कर देंगे. एक्चुअल रेंट से माइनस करने का मतलब यू आर क्लेमिंग डिडक्शन. यू आर क्लेमिंग डिडक्शन मीन्स आपको कम इनकम पे टैक्स भरना है. पॉसिबल है? ऑफकोर्स पॉसिबल है, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. अनरियलाइज रेंट नहीं मिला, मतलब कि रेंट नहीं मिला. रेंट नहीं मिला तो दौड़ते दौड़ते पहुंच जाने का इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कि अंकल मुझे अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन दे दो ना, मुझे रेंट नहीं मिल रहा है. ऐसा थोड़ी चलेगा. इनकम टैक्स ऑफिसर मानेगा? नहीं मानेगा. वो क्या करेगा? जैसे नियार सर बोलते हैं वैसा होगा. क्या होगा?
जैसे आप लोग नहीं बोलते कि सर एग्जाम 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 नहीं देनी, एग्जाम नहीं देनी। अरे भैया पहले एग्जाम दे तो सही, कुछ स्कोर तो कर, फिर डिसाइड करेंगे कि इंटरमीडिएट में क्या करना है, 1 ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, वगैरह वगैरह। नहीं, हम लोग आराम से काउंसलिंग करते, लेकिन उसके पहले ट्राई तो कर, पहले से ही गिव अप। हाँ, थोड़ा कोरिलेट किया। ओके, अनरियलाइज रेंट, इफ यू वांट द डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज रेंट, क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली यू आर सपोज टू प्रूव, क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि ये जो लॉस हुआ है, अनरियलाइज रेंट का जो लॉस हुआ है, उसको आपने रिकवर करने की कोशिश की थी, फिर भी आपको भाड़ा नहीं मिला है। यू आर सपोज टू प्रूव सर्टन थिंग्स, और वो प्रूव करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मतलब कि अनरियलाइज रेंट को डिडक्शन क्लेम करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस आर देयर। Which are these conditions? First condition, your tenancy must be bona fide. Bona fide. In good faith, genuine tenancy होना चाहिए। मतलब there should not be any malified intention. Malified intention मतलब कोई खराब इंटेंशन से आपने ये प्रॉपर्टी किसी को लेट आउट ना किया हो, इनजेन्युइननेस ना हो, एक्चुअली लेट आउट किया हो। There should not be ghost tenancy. You know, ghost tenancy for tax evasion purpose, so many people are doing, we will not do. पाप है, पाप. Okay. So first thing, tenancy must be bona fide. कैसे genuineness होगा? तो रेंट एग्रीमेंट हो, रेंट रिसिप्ट हो, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो, पुलिस में इन्फॉर्म भी किया हो कि मेरा ये टेनेंट है। These are the some of the conditions to prove the genuineness, bona fide. Second thing, defaulting tenant should vacate the property. Defaulting tenant मतलब जो आपको भाड़ा नहीं देता है। अगर भाड़ा नहीं देता है तो वो घर खाली करके चला जाए। He should vacate the property. सर ना जाए तो compel him to vacate the property. ऐसे कैसे नहीं जाएगा? निकालो बाहर। Fine. So second condition, the defaulting tenant has vacated the property. Or steps have been taken to compel him to vacate the property. Compel him to vacate. कुछ भी करके उसको बोलो कि तुझे प्रॉपर्टी छोड़ के जाना पड़ेगा, या तो भाड़ा दे या तो प्रॉपर्टी छोड़। थर्ड कंडीशन, the defaulting tenant should not be in occupation of any other property of the assessee. डिफॉल्टिंग टेनेंट के पास अपनी दूसरी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो वापस ले लो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव लेट आउट 2 प्रॉपर्टीज टू मिस्टर एक्स। उसने एक प्रॉपर्टी का भाड़ा नहीं दिया, अनरियलाइज रेंट ऑफ वन ऑफ द प्रॉपर्टी। दूसरे प्रॉपर्टी का भाड़ा देता है तो भी उसके पास से वो दूसरी प्रॉपर्टी वापस ले लो। ही शुड नॉट बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास दूसरी प्रॉपर्टी होगी, इफ एट ऑल ही इज हैविंग पोजेशन ऑफ द अदर प्रॉपर्टी, देन देयर इज अ रीजन टू बिलीव कि आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी का रेंट मिल गया होगा इन कैश। देयर इज नो अनरियलाइज रेंट। क्लियर केस ऑफ टैक्स इवेजन। गलत। सो डिफॉल्टिंग टेनेंट शुड नॉट बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। अपना दूसरा कोई प्रॉपर्टी उसके पास नहीं होना चाहिए। नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ any other property of the assessee. And fourth condition, assessee has taken reasonable steps. Reasonable steps. What is reasonable? It is not defined anywhere. Reasonable case to case basis it will differ. आपने reasonable steps लिए हो to institute the legal proceeding. Legal proceeding के लिए आपने reasonable step लिए हो, you can prove like you have given 1 or 2 notice वगैरह, or satisfy the assessing officer that the legal step would be useless. Satisfy the assessing officer legal proceedings useless. कब? When legal proceeding will be useless? Number 1, death of tenant. Number 2, tenant becomes the person of unsound mind. Tenant is convicted. इन शॉर्ट इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी जैसा कुछ हो जाए जिसमें लीगल प्रोसीडिंग करना पॉसिबल ना हो। यू आर सपोज टू प्रूव, यू आर सपोज टू सेटिस्फाई
यू आर सपोज टू प्रूव बिफोर द असेसिंग ऑफिसर दैट लीगल स्टेप वुड बी यूजलेस. अगर लीगल स्टेप लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So if 4 conditions are satisfied, all these 4 conditions, number 1, tenancy is bona fide. Bona fide मतलब genuine tenancy होना चाहिए. So number 2, defaulting tenant should vacate the property. Number 3, defaulting tenant should not be in occupation of any other property of the assessee. अपना दूसरा कोई property उसके पास नहीं होना चाहिए. And number 4, you have taken reasonable steps for recovery of rent or satisfy the assessing officer that legal step would be useless. Legal step useless होते. Correct? If all these 4 conditions are satisfied, then only unrealized rent is allowed as deduction. अगर ये चारों condition satisfy हो जाए तो ही unrealized rent का deduction मिलेगा. Actual rent से minus कर सकते हैं. अगर ये condition satisfy नहीं हुई तो unrealized rent का deduction नहीं मिलेगा. Correct? In past attempts एक practical question इसके बेस पे आया था. Unrealized rent हुआ है. One of these condition was not satisfied, so unrealized rent का deduction मतलब कि actual rent से minus करना possible नहीं है. Correct? So if all these 4 conditions are satisfied, unrealized rent allowed as a deduction. So now what to do for exam? When nothing is specified, कुछ भी ना बोला हो तो always assume that all these conditions are fulfilled. ये सारी condition fulfill हो गई है. एंड अनरियलाइज रेंट ऑलवेज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट. अगर एग्जाम्पल में कुछ बोला नहीं है तो ऑलवेज अज्यूम दैट अनरियलाइज रेंट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट अज्यूमिंग ऑल दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. करेक्ट? सो अब इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो जल्दी से और लास्ट ये जो सेंटेंस है उसको लिख लो. मेक इट फास्ट. अनरियलाइज रेंट. फाइन, लिख लिया. Okay, that is all about section 23 computation of annual value. सबसे crucial discussion हमने किया है अभी तक, the crux of the topic. इतना हमने डिस्कस किया है. 23, how to calculate the annual value of the property. 23 subsection 1, 2, 3, 4, 5 and we have discussed the portion of unrealized rent also. Correct? और उसके बाद का एक छोटा सा पॉइंट है म्युनिसिपल टैक्स. उसके लिए जल्दी से नौकर स्पायरल पे आ जाओ. म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू ओनली ऑन पेमेंट बेसिस. ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. पेमेंट बेसिस, पेड बाय ओनर, लेट आउट हाउस. व्हेनेवर वी से लेट आउट हाउस इट इज ऑलवेज इंक्लूडिंग डिम लेट आउट. डिम लेट आउट क्या है वो हमने अभी देख लिया है. लेट आउट इंक्लूडिंग डिम लेट आउट. म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस म्युनिसिपल टैक्स नॉट अलाउड. टेनेंट ने पे किया म्युनिसिपल टैक्स नॉट अलाउड. म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग है म्युनिसिपल टैक्स नॉट अलाउड. Fine. So that is all about computation of annual value. करेक्ट है? क्लियर है? फिर से एक बार अभी बैठ के सारी नोट्स जल्दी से पढ़ लोगे. जितना मैंने लिखवाया है वो भी और जितना नौकार स्पायरल में है वो भी. 23 is the crucial part of this particular topic. करेक्ट? जल्दी से एक बार पढ़ लो फास्ट. देख लिया? नेक्स्ट टाइम वी विल मूव टू सेक्शन 24 डिडक्शन पार्ट. नेक्स्ट टाइम डिडक्शन से स्टार्ट करेंगे. तब तक सब कुछ रीड करके बैठोगे. विच इनकम इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम, विच इनकम इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ओनर, डिम्ड ओनर, computation of annual value in case of let out, self occupied, not self occupied, dim let out, stock in trade property, treatment of unrealized rent and municipal tax. इतना डिस्कशन अपना हुआ है, उसको रीड करके बैठोगे. नेक्स्ट टाइम विल मूव टू सेक्शन 24. आज यहाँ पे अटकते हैं. स्टे हेल्दी. थैंक यू. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.